Hi guys, myself Surya, your science teacher. So from today onwards we are going to start our new syllabus. So our first chapter is crop production and management. In this chapter we will study about the crop and also the different types of crop. Further we will study how to produce a crop and what are the management we have to do so that the crop production will increase. Clear? If we talk about this chapter, then this chapter is totally based upon the agriculture. So we will begin this chapter by a term agriculture. If we talk about agriculture, then the agriculture begins on the earth before 10,000 years ago. मीन 10,000 साल पहले इस अर्थ पे एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था. क्लियर? सो एग्रीकल्चर नॉट year or 2 year before started, it started before 10 years. Now the term which I have written here, agriculture, what it's mean? See here, this agriculture have two terms. One is agri and next one is culture. Here the agri stand for field and culture means to cultivate. Means if we join these meanings, then it will become what? Field to cultivate. Clear? So now we will come towards the agriculture. So agriculture is a branch of biology in which we deals with the study of growing of plants and also rearing of animals for food, fibers and other useful products. Clear? So now what we have to write, that agriculture is Latin originated. Agri means field and cultura means to cultivate. Actually agri is not a Latin word, it's a ager. Clear? So we do not use a Latin word, or actually all the words are originated from Latin, but we write in a English. So that's a agra become agri. Clear? So agri means field and culture, or we can say cultura, means to cultivate. Clear? So the field in which we are cultivating, the technique is known as agriculture. Clear? So write this. Now further, what we have to write? The definition of agriculture. Write it. It is a branch of biology which deals with the growing of crops and rearing of animals for food, fibers and other useful products. Clear? So this is a definition of agriculture. Further, one more definition is given in your book. No, we can say this agriculture a practice also. Means agriculture can be also defined as it is a practice of growing crops and rearing of animals for food, fibers and other useful products. So this is also a definition of agriculture, and the previous one which I have told you, that also a definition of agriculture. So both are correct. You have to write both in your copy, but in examination you can write any one. You will get the full marks. Clear?
Now, further, if we talk about this agriculture, then agriculture have lots of branches. Agriculture have lots of branches. Clear? So here we will discuss two branches. Agriculture is further have two branches. One is known as horticulture and other one is known as rearing of animals. क्लियर? सो एग्रीकल्चर की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है हॉर्टिकल्चर और एक क्या है, रेयरिंग ऑफ एनिमल. क्लियर? नाउ द हॉर्टिकल्चर, सी हियर, horticulture itself a branch of agriculture. So here we can write that horticulture is a branch of agriculture. So horticulture is a branch of agriculture. So in horticulture we deals with the study of plants. We deals with the study of plant. So if we talk about this word horti, horti means garden. Horti means garden. Further, culture means to cultivate. So if we are cultivating in a garden, then the term we use horticulture. Clear? So horticulture is nothing, it's a branch of agriculture which deals with the growing of plants. Clear? Now horticulture is nothing, it's a growing practice of growing of plants. Clear? Now see here, I have written plants. You can recognize that you have studied lots of plants, and also in your surrounding you have lots of plants like flowering plant, vegetable plant, fruit giving plants, different plants we have here. So further, this horticulture is divided into different branches on the basis of plantation. If we are planting vegetables, then the branch is known as olericulture. Olericulture. Clear? So olericulture deals with the growing of vegetables and also its storage and marketing. Means जो olericulture है ये वेजिटेबल्स की ग्रोइंग के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, साथ साथ वेजिटेबल को स्टोर करना, साथ साथ उसके बाद उसकी मार्केटिंग तक, ये पूरी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑलरीकल्चर. तो ऑलरीकल्चर के अंदर वेजिटेबल्स को ग्रो करने के बारे में हम पढ़ते हैं, साथ साथ उसको कैसे स्टोर करेंगे, उसके बाद उसको हम मार्केटिंग कैसे करेंगे उसकी, उसके बारे में. इस पूरे जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, इस पूरे को मिला के एक ब्रांच बनाया गया, क्या, ऑलरीकल्चर. तो simply you can learn like that. Olericulture deals with the growing of vegetables. Clear? Further, so this was about the vegetable. Now we also have very good fruit plant. Now, so it's are known as pomology. What? Pomology, or we can say pomoculture. Clear? Generally we use pomology. Now the pomology, if the plant which is here, we replace this plant word by a fruit, then the branch will become pomology. Now listen carefully. Pomology is nothing, it is a branch of horticulture which deals with the growing of fruits. Growing of fruits. Clear? फ्रूट्स का मतलब समझ रहे हो ना, फ्रूट्स का मतलब यहाँ पे है फ्रूट्स गिविंग प्लांट से. क्लियर? सो
पोमोलॉजी का मतलब कैसे हो गया, फ्रूट से रिलेटेड हो गया। देखो पोमोग्रेनेट एक वर्ड सुना है ना, हाँ अनार, वो भी क्या एक फ्रूट ही, ठीक है। तो पोमो का मतलब फ्रूट ही होता है, ठीक है। और ऑलरी मतलब होता है वेजिटेबल। ऑलरी मतलब क्या होता है, ऑलरी मीन्स वेजिटेबल, क्लियर। फर्दर अब जो प्लांट है वो फ्लावर गिविंग भी तो हो सकता है, फ्लावर देने वाला प्लांट भी तो हो सकता है। अगर फ्लावरिंग प्लांट को हम ग्रो कराएंगे तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। नाउ द floriculture is the branch of horticulture which deals with the growing of flowers. That's a floriculture. Further we have few more branches of horticulture, but it is beyond of our scope. You have seen the nursery. Nursery also come inside this horticulture. Also we decorate our garden by planting different ornamental plants na. So that's also a horticulture, clear. So nursery means growing of plant at a particular area, clear. So that's a nursery. So nursery भी horticulture की एक branch है ना, हाँ, जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं प्रॉपरली, वहाँ पे ब्रीडिंग भी कराते हैं नर्सरी में, इंटरब्रीड कराते हैं, जिससे हम हाइब्रिड क्वालिटी भी उत्पन्न कराते हैं। सुना होगा ना मार्केट में हाइब्रिड सीड आता है, तो वो कहाँ से आता है, वो सारा एक्सपेरिमेंट नर्सरी के अंदर होता है, ठीक है। तो नर्सरी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, प्लांट को ग्रो करते हैं। आपके आस पड़ोस में नर्सरी होगा, ठीक। अगली बात एक और बताई मैंने ब्रांच, हॉर्टिकल्चर की एक और ब्रांच है क्या, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स को ग्रो करना। देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, किनारे किनारे क्या लगे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, किसके लिए, सुंदरता के लिए, ठीक है। आपके घर में भी लगे होंगे बहुत सारे प्लांट जो आपके घर को सुंदर बनाते होंगे, अपने स्कूल में भी लगे हैं, और काफ़ी प्लांट्स लग चुके हैं अभी। आप लोग काफ़ी दिनों से नहीं आए हो ना, हाँ, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने की टेक्निक है वो भी क्या है, एक ब्रांच है किसकी, हॉर्टिकल्चर। बात क्लियर हुई, हाँ। नाउ दिस वाज अबाउट द हॉर्टिकल्चर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेयरिंग ऑफ एनिमल, then rearing of animal is a branch of agriculture which deals with the increasing livestock for useful products, clear, or for desirable product means जो भी हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है उसके लिए, या फिर बोले जो हमें चाहिए। जैसे हमें काऊ रखना है तो जाहिर सी बात है मिल्क चाहिए होगा तभी काऊ रखना है मुझे। अगर मेरा मन किया कि मैं हैन को पालूं तो जाहिर सी बात है उससे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या, वन थिंग इज एग एंड अदर थिंग इज मीट, वेरी गुड ना। तो उसे हम फार्मिंग बोल देंगे। अगर मान लेते हैं मेरा मन किया कि मैं हनी बी की फार्मिंग करूं तो वो कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है, एपीकल्चर। हाँ, तो एपीकल्चर में हम हनी का रेयरिंग करेंगे ना, पालन करेंगे। अब हनी बी का पालन करोगे तो दो चीजें हमें मिलेगी, एक तो उसका बीहाई मिलेगा, उससे वैक्स बनाया जाता है ना, हाँ। अगला क्या है कि उससे हमें क्या मिलेगा, एक यूजफुल प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ, लिक्विड वाटरी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, हाँ, हनी बोलते हैं ना। हनी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, क्लियर। So this was about the rearing of agriculture. So we can write here branch of agriculture which deals with the increasing of livestock for desirable product or we can say for useful product, जो प्रोडक्ट हमारे यूजफुल है उसके लिए ना। सो दिस वाज अबाउट द रेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर, क्लियर। सो फर्दर अगर रेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर को हम डिस्कशन में ले तो जैसे हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस थे ना, ऐसे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के भी
फर्दर ब्रांचेस होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या ब्रांचेस होते हैं। आप लोग इसको नीचे राइट करिए, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं राइट कर दूंगा ना, तो मैं ऊपर के साइड और उधर उस साइड राइट क्यों, तो आप नीचे राइट करिएगा। हॉर्टिकल्चर देख के ब्रांचेस बनाए, ऑर्गेनिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरोलॉजी, जिसको लिखना हो तुम नर्सरी भी लिख सकता है, एंड ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी ब्रांच थी ना हॉर्टिकल्चर। लेकिन ये 3 याद रखना, यही पूछा जाता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स में बात करें तो सबसे पहला होता है पीसी कल्चर। देखो, अगर आपको एनिमल किंगडम याद हो, मैंने आपको 6th क्लास में थोड़ा बहुत बता दिया था ना, हाँ, तो उसमें बताया था कॉर्डेट्स में ना कि फिशेस को कुछ बोलते थे, याद है किसी को? हाँ पता है, हाँ वेरी गुड, क्या बोलते थे? पाइसेस। ऐसा कुछ वर्ड है, वो होता था पाइसेस ना। देखो यहाँ इतना वर्ड है, आज लगा गया पीसी। तो पीसी मीन्स फिश से है, किससे है? फिश। तो फिश का कल्चर करना कहलाएगा पीसी कल्चर। तो रेयरिंग ऑफ फिशेस नोन एज पीसी कल्चर। बात क्लियर हुई सबको? अगला क्या? अगर हनी बी, अभी बताया था हनी बी की रेयरिंग करेंगे ना, तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा एपीकल्चर। तो रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी नोन एज एपीकल्चर। क्लियर? अगली बात कर रहे हैं, अगर हम सिल्क मॉथ को ग्रो करा रहे हैं ना, तो कहलाएगा सेरीकल्चर। क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर को क्या बोलेंगे? ग्रोइंग ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ क्या होता है? सिल्क प्रोड्यूस करने वाला इंसेक्ट या फिर बोले कीड़ा। क्लियर? तो सेरीकल्चर कहलाएगा। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क मॉथ फॉर सिल्क नोन एज सेरीकल्चर। क्लियर? अब अगली बात करें, एक और होता है जो बहुत कॉमन होता है, तो ये बता सकता है? हाँ, वो फाइनली आप लोग रास्ते में आते जाते मिलता होगा, मैं हिंट दे रहा हूँ। मतलब जब भी आप आते जाते होगे, एक और ब्रांच होता है, कोई बता सकता है? हाँ, ये जो अगला ब्रांच है, ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता होगा, कभी भी रास्ते में आते जाते मिलता होगा, बहुत सारे कि ऑन द वे में भी पड़ता होगा ये ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हो सकता है घर में हो भी। हाँ वेरी गुड, क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग। क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग। अब पोल्ट्री फार्मिंग में हम करते क्या है, इसमें हम हाँ बर्ड्स को क्या करते हैं? रेयर करते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग, इन पोल्ट्री फार्मिंग वी रेयर द डोमेस्टिक बर्ड्स। जितने भी डोमेस्टिक बर्ड्स हैं उनको रेयर किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। ठीक है? हाँ, अब डोमेस्टिक बर्ड जैसे कॉमनली क्या होता है? हैन होता है। क्या होता है? हैन होता है। क्लियर? तो पोल्ट्री फार्मिंग होगी। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ रेयरिंग ऑफ एनिमल। बात क्लियर हुई? तो इसको याद रखेंगे, ये कॉमनली पूछा जाता है। होती तो बहुत है, जैसे मिल्क प्रोड्यूस करने वाला ना, बहुत सारी ब्रांचेस है। हाँ, मिल्क प्रोड्यूस करने वाला लिख लो, उसे क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मिंग। लिख लो, भी कर लो, वो तो आपको पता भी होता है। कभी नाम वर्ड डेयरी आए तो डेयरी से रिलेटेड होता है क्या? मिल्क प्रोडक्ट से ना। जैसे डेयरी मिल्क है तो उसमें देखोगे चॉकलेट जो डेयरी मिल्क है उसमें मिल्क बना होगा ना, नाम भी आगे डेयरी मिल्क, तो समझ भी जाते हो। तो डेयरी क्या है? डेयरी फार्मिंग में, इन डेयरी फार्मिंग वी रेयर द मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स। जो भी मिल्क प्रोड्यूस करने वाले पालतू जानवर है उनको हम रेयर करते हैं इस डेयरी फार्मिंग में। क्लियर? हाँ, सो इन सब के बारे में आप राइट कर लें, सारे ब्रांचेस को। ठीक है? तो मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो लिख लें मेरे साथ साथ। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, आगे इसमें क्या होगा? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, इसमें क्या होगा?
ग्रोइंग ऑफ फ्लावर। क्लियर? चलो फिशिकल्चर में आते तो क्या बोलेंगे? रेयरिंग ऑफ फिशेस और एपीकल्चर में क्या बोलेंगे? एपीकल्चर में बोलेंगे रेयरिंग ऑफ, आगे बता, सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ क्या होता है? सिल्क प्रोड्यूस करने वाला कीड़ा। क्लियर? आगे सॉरी सेरिकल्चर में आएगा ना वो, ये आएगा रेयरिंग ऑफ हनी। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बोला भी था, ऑब्जेक्शन किया था, हाँ सर ऊपर का नीचे हो गया। बहुत बढ़िया, आप ध्यान दे रहे हैं, ऐसा ही पढ़ते रहो। एक दिन क्या, आप तो आ ही चुके हो टॉपरों की सीढ़ी में, बस इसी को आप कंटिन्यूअसली ना रूटीन में अपने अपना लें। जैसे आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं, ऐसे लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो कोई भी ऐसा कंपटीशन, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आपको बाहर निकाल सके और टॉपरों की श्रेणी से आपको हटा सके। समझ रहे हैं? लिखे, खुश हो जाए, लिखते भी रहे। सेरिकल्चर बोले तो रेयरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। अगला है पोल्ट्री फार्मिंग। इधर मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि अब जगह नहीं बची है, तो पोल्ट्री फार्मिंग का इधर लिखते रहूं मैं। क्या हो जाएगा? रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक बर्ड्स। क्लियर? अगला डेयरी फार्मिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? रेयरिंग ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स। क्लियर? इसको लिख लें। ठीक, फिर एक रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करें। राइट, चलिए अभी तक हमने देखा एग्रीकल्चर और उसकी ब्रांचेस। क्लियर? अब बात करें अर्लियर टाइम की। सो इन अर्लियर टाइम वी डू नॉट हैव अ सच टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच वी हैव टुडे। हमारे पास ऐसे मैनेजमेंट्स और टेक्निक्स नहीं थे जो आज है, जिससे उससे क्या होता था? प्रोडक्शन जो है, हाँ, बहुत डिक्लाइन हो जाता था, कम हो जाता था। तो इन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें नई नई टेक्निक्स, नए नए तरीके के सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ा और तब जाके प्रोडक्शन आगे बढ़ा। ठीक है? तो इन सब चीजों के लिए ये रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। तो पहले होता क्या था, हम ग्रो करते थे, हमारा जो बोले तो आउटकम है या फिर बोले जो क्रॉप है वो क्या हो जाता था? डिक्लाइन हो जाता, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता था। अब क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या ह्यूमन का जो नीड है वो फुलफिल हो पाएगा? जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्रॉप प्रोडक्शन में। ठीक, पक्का? तो रेवोल्यूशन की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है? अगर अभी क्रॉप की डिस्कशन फर्दर बात करेंगे, क्रॉप का मतलब केवल प्लांट से ही नहीं है, एनिमल से भी रिलेटेड है। ठीक है? तो क्रॉप की बात कर रहे हैं, अगर क्रॉप जो है प्लांट होगा तब जो रेवोल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहलाएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर? तो रेवोल्यूशन मतलब सिंपल क्रांति होती, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कहलाता है हरित क्रांति। क्या कहलाता है? हरित क्रांति। तो इस रेवोल्यूशन से जो प्लांट का प्रोडक्शन था या फिर बोले क्रॉप का प्रोडक्शन था वो एकाएक क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस क्रांति के वजह से। जहां मान लेते हैं 100 टन हो रहे थे, वहां लाखों टन पैदावार बढ़ जाएगी। मीन जहां 100 टन चावल हो रहा था वहीं पे लाखों टन ज्यादा पैदावार हो जाएगी। मतलब 100 का लाख गुना ज्यादा पैदावार हो जाती है। ठीक है? इस ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से। क्लियर? पक्का? तो पैदावार बहुत गुना बढ़ गई थी। अब देखो, इस ग्रीन रेवोल्यूशन को किसी ने चलाया भी होगा, जो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है।
तो बोला जाए फादर, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? वो है कौन है? नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो वर्ड की है। ठीक है, अगर इंडियन की बात करें, इंडिया में किसने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था? तो वो चलाया था एमएस स्वामीनाथन ने। तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन ये है कौन? एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ही अच्छा है। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन पूछे तो समझ जाओ आप वर्ड की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, हाँ, तो अगला है कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन वो कौन है? एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। बहुत पूछा जाता है, इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बात थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द प्लांट्स। तो यहां लिखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द प्लांट्स। क्लियर? अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक रेवोल्यूशन सा आ गया, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया, फिर उसके बाद सही में क्रांति आ गई। तो हर फील्ड में रेवोल्यूशन चलाया जाने लगा। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि जो प्रोडक्शन है वो पहले के गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ऐसे ही जब दूध की बोले तो प्रोडक्शन, दूध का जो प्रोडक्शन था, ठीक है, कम होने लगा था, दूध की फार्मिंग डिक्लाइन होने लगी थी, तो उसमें हम प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर टेक्निक्स लगा के उसके भी प्रोडक्शन को बढ़ा दिए थे। ठीक है, उस समय जो रेवोल्यूशन चलाया गया था वो कहलाया था व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या कहलाया था? व्हाइट रेवोल्यूशन। अब देखो, व्हाइट रेवोल्यूशन में आपसे फादर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे केवल जो बात पूछी जाती है वो याद रखें। तो इन व्हाइट रेवोल्यूशन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? लिख लेंगे क्या? रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। बात क्लियर हुई? हाँ, लिखें। एक और रेवोल्यूशन है जो आपसे पूछा जाता है, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, एक होता है ब्लू रेवोल्यूशन। अब दिमाग लगाएं, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, जिसको आ जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा आपने। जब भी जो रोल नंबर होगा, जो भी नेम आप राइट करते हो उसके साथ साथ ब्लू रेवोल्यूशन अगर आपको आ रहा है तो उसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, हाँ, फर्दर ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। क्लियर? हाँ, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ब्लू रेवोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। ठीक, यहाँ पे जगह छोड़ ले, लिख ले ब्लू रेवोल्यूशन बस। बाकी अगर जिसको आ रहा है बढ़िया है, और जिसको नहीं आ रहा तब भी बढ़िया है। कि कोशिश करिए इसको फाइंड करने की, और बेहतर ये होगा कि अपने दिमाग से लगाइए ब्लू कलर किससे रिलेटेड होगा इन सब में, जितना भी बताया अभी रीडिंग ऑफ एनिमल्स में। ठीक, तो इसको खोजिएगा। चलिए, तो ये बात थी किसकी? रेवोल्यूशन की। क्लियर हुई बात? राइट। चलिए, तो ये हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। हाँ, एक और रेवोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन। तो आपके लिए होमवर्क है येलो रेवोल्यूशन और एक पहले दिया ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कमेंट सेक्शन से एक चीज़ और याद आई मुझे, आप समझ गए होंगे क्या? बिल्कुल सही, कोड। सो आपका कोड है व्हाट यू हैव टू राइट अल्फाबेट इन योर कोड। मीन्स जैसे अगर आपका रोल नंबर 1 है तो आप कोड लिखेंगे और डालेंगे A। ठीक है, अगर आपका रोल नंबर 2 है तो आप लिखेंगे B। अगर आपका रोल नंबर 3 है तो आप कोड लिखेंगे C।
अगर आपका रोल नंबर 4 है तो कोड लिखेंगे D and so on। ठीक है, चलिए गुड। तो ये आज का आपका कोड था। चलिए, अब हमने रेवोल्यूशन देखा, तो रेवोल्यूशन में देखा कि प्रोडक्शन जब कम हो रहा था तो रेवोल्यूशन चलाया गया प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट के लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन अपने इंडिया में आया था कब? 1960s में। ठीक, हाँ 1960s में था। अब फर्दर बात करें, जो प्रोडक्शन था वो बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब भी लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्लांट को ग्रो कराते हैं, तो वो सारी प्लांट्स क्रॉप कहलाते हैं। जब कभी ढेर सारे प्लांट एक साथ ग्रो कराए जाते हैं, ठीक है, उन सभी को हम क्रॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप कहते हैं। ठीक है, हाँ राइम बनाने लगे थे आप भी, हाँ बनाया जाएगा आगे। ठीक है, तो क्रॉप की बात करें तो क्या होगा? ग्रोइंग ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल नोन एज क्रॉप। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड्स ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल। देखो ये जो चैप्टर है इसमें हम मेनली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर में हम मेनली प्लांट्स से, हालांकि एनिमल के बारे में थोड़ा सा है, लेकिन मेनली दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन प्लांट प्रोडक्शन। तो प्लांट प्रोडक्शन के बारे में है, तो याद रखिएगा ये जो क्रॉप वर्ड है ये प्लांट्स के लिए भी यूज होता है और एनिमल के लिए भी यूज होता है। व्हेन एनिमल्स आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल इज आल्सो अ crop. So we use this crop word for animal also and for plant also. But in this chapter we will study about only plant. ना, हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा एनिमल के बारे में, लेकिन मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? प्लांट के बारे में। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कल्चर ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल्स, या फिर बोल सकते हैं रेयरिंग ऑफ एनिमल ऑन लार्ज स्केल। रेयरिंग ऑफ एनिमल ऑन लार्ज स्केल इज आल्सो अ क्रॉप। क्लियर? अब इसको कंप्लीट कर दें। ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर डिजायरेबल प्रोडक्ट। अब डिजायरेबल प्रोडक्ट फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, या फिर हम ऑर्नामेंट के लिए लगाए हो, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो कर रहे हो, या फिर नर्सरी ग्रो कर रहे हो ना, कल्चर करा रहे हो ना। तो क्रॉप की सिंपल डेफिनेशन है ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर डिजायरेबल प्रोडक्ट। अब देखो एक चीज और, मान लेते हैं ये एक प्लांट है, ये प्लांट, देख तो ये केवल और केवल क्या कहलाएगा? प्लांट। ठीक है, केवल और केवल क्या कहलाएगा? प्लांट। अगर किसी एरिया में ऐसे ही प्लांट ढेर सारे लगा दिए जाए, देखो ऐसे ही प्लांट ढेर सारे लगा दिए गए, अब इसको हम प्लांट ना कह के क्या बोलेंगे? क्रॉप। क्या बोलेंगे? क्रॉप। मान लेते ये वीट का प्लांट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? वीट प्लांट। अब मान लेते ये वीट के सारे प्लांट होते इकट्ठे तो इसको क्या बोलते हैं? वीट क्रॉप। बात क्लियर हुई? तो जब कभी सेम तरीके के प्लांट कहीं पे ग्रो कराए जाते हैं, ठीक है, हाँ, और कहा किस पे? लार्ज नंबर में, लार्ज स्केल पे, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रॉप। ठीक है, सो क्रॉप वर्ड इज यूज फॉर बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। सो कमाल की बात में हम लिख लेंगे इसको लिखने के बाद। सो आज की कमाल की बात क्या है? कमाल की बात है क्या? टर्न
crop is used for both plants and animals. बात क्लियर हुई? तो प्लांट्स के केस में हमने लिख लिया, एनिमल्स के केस में क्या लिखते हैं? ग्रोइंग ऑफ या फिर बोले रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, क्या कहलाता है वो? क्रॉप कहलाता है। अब ये प्लांट क्रॉप कहलाएगा, वो एनिमल क्रॉप कहलाता है। बात क्लियर हुई? हाँ, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं अब मेरी बोले तो ड्राइंग तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हाँ देख के बना सकता हूँ, ऐसा नहीं बनता मुझसे। हाँ, मान लेते हैं मुर्गा होता है, ठीक, हेन होता है, ये मुर्गी होती है। हाँ, अगर ये मुर्गी एक है तो इसे क्या बोलेंगे? सिंपल हेन। अगर ऐसे ही ढेर सारे हम क्या करते हैं, मुर्गी को उगा लेते हैं, मतलब ढेर सारे हेन ले आते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉप ऑफ हेन। क्या कहलाता है? क्रॉप ऑफ हेन। ठीक, तो जब भी क्या करेंगे, किसी भी एनिमल का पालन हम लार्ज स्केल पे करेंगे तो वो भी क्या कहलाने लगेगा? क्रॉप कहलाने लगेगा। सो क्रॉप जो टर्म है ये एनिमल के लिए भी यूज किया जाता है और प्लांट के लिए किया जाता है, लेकिन मेनली इन दिस चैप्टर वी आर डीलिंग विद द प्लांट्स। सो हियर वी आर यूजिंग दिस क्रॉप वर्ड फॉर प्लांट्स ओनली। बात क्लियर हुई? तो केकेबी में ये बात आप लिख लेंगे और एनिमल क्रॉप की डेफिनेशन लिख देंगे, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर डिजायरेबल प्रोडक्ट। डिजायरेबल प्रोडक्ट लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें डिजायर होता है उसी के लिए तो हम क्या करते हैं, पालन करते हैं ना, या फिर बोले एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे हमें अगर एग चाहिए या मीट चाहिए तो पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, मिल्क चाहिए तो डेयरी फार्मिंग करेंगे, मान लेते फिश को क्या करना है, ग्रो करा के सेल करना है तो पिसिकल्चर करेंगे। क्लियर? सिल्क बनाना है सेरिकल्चर करेंगे। और अगर अपन लोगों को क्या चाहिए, हनी चाहिए, तो क्या करेंगे? अगर हमें हनी चाहिए तो हम लोग एपीकल्चर करेंगे। क्या करेंगे? एपीकल्चर करेंगे। समझे? लेकिन चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्रॉप। तो क्रॉप की डेफिनेशन अभी तक हम लोगों ने देख ली। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो अगर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द टू बेसिस। दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है कि क्रॉप इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे पहले क्रॉप को क्लासिफाई किया गया। फिर अगला क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फेट, मतलब उसका फेट क्या है ना, हाँ उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया ना। तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन है क्रॉप का वो कौन सा बेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ फेट, या फिर बोले ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। मींस क्रॉप का पर्पस क्या है, क्रॉप प्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है ना। तो सीजन के बेसिस पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चे जानते भी होंगे जो समझदार बच्चे हैं। वैसे हालांकि हमारे सारे बच्चे समझदार हैं, तो जल्दी से बता दो बच्चों, ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे कितने तरीके के क्रॉप होते हैं? वेरी गुड। अब देखो, क्रॉप जो है सीजन के बेसिस पे 3 तरीके के होते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अभी तक तो 2 ही पढ़ा। हाँ, अभी तक पढ़े ना, अब आपको 3 पढ़ना है। कितने पढ़ने हैं? 3। पहला है रबी क्रॉप, दूसरा है खरीफ क्रॉप और तीसरा है जैद क्रॉप। क्या है? जैद क्रॉप। क्लियर? अब देखो, जो ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे जो क्रॉप्स हैं उनके नेम तो हमने देख लिए, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप। ठीक, लेकिन इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले
मतलब इनके सीजन पढ़ने से पहले 2 टर्म्स हमें आने चाहिए। एक है सोइंग पीरियड और दूसरा है हार्वेस्टिंग पीरियड। एक है सोइंग पीरियड और दूसरा है हार्वेस्टिंग पीरियड। या फिर बोल सकते हैं सोइंग पीरियड का मतलब सोइंग टाइम क्या है, समय क्या है, ठीक है। तो सोइंग मतलब होता है सीड लगाने का, तो सीड लगाने का समय मतलब सोइंग पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो प्लांट हमने ग्रो कराया था, क्रॉप ग्रो कराया था, उसको हार्वेस्ट करने मतलब उसकी कटाई करने का जो समय क्या कहलाएगा, हार्वेस्टिंग पीरियड। तो सोइंग पीरियड इज रिलेटेड विद द प्लगिंग ऑफ सीड्स ना। हाँ, और हार्वेस्टिंग पीरियड की बात करें तो क्या है, हार्वेस्टिंग पीरियड इज रिलेटेड विद द रिमूवल ऑफ क्रॉप, या बोले हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। अरे हार्वेस्ट करना ना, इसलिए नाम ही क्या है, हार्वेस्टिंग। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, सोइंग पीरियड और हार्वेस्टिंग पीरियड। बात क्लियर हुई? हाँ, तो जो क्रॉप्स हैं जितने भी, मतलब ये उनके 2 चीजें होंगी, सोइंग पीरियड और एक हार्वेस्टिंग पीरियड होगा। बात क्लियर हो रही है? हाँ, अब देखें जो रबी क्रॉप है इसका जो सोइंग पीरियड है ये होता है क्या, नवंबर। मतलब रबी क्रॉप की बुआई नवंबर में की जाती है। हार्वेस्टिंग इसकी जो करी जाती है ये होती है अप्रैल। क्या होती है, अप्रैल में। तो सोइंग मतलब इसकी सीड को लगाया कब जाता है, नवंबर में, और हार्वेस्टिंग मतलब कटाई कब होती है, अप्रैल में। खरीफ क्रॉप पे है तो इसका सोइंग पीरियड जो होता है वो होता है जून, ठीक है। और जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो होता है, वेरी गुड, अक्टूबर, ठीक। तो ये 2 तरीके के क्रॉप हमने ऑलरेडी पढ़ रखे थे ना प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन जैद क्रॉप एक नया क्रॉप है, मतलब नया नाम आज सुनने को मिल रहा है। हाँ, जैद क्रॉप जो है इन्हीं दोनों के बीच में जो समय मिलता है उसमें आता है। देखो, इसको लगाया जाता है मार्च में और हार्वेस्ट किया जाता है जून में, ठीक। हाँ, तो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप। अब जो रबी क्रॉप है, अगर यहाँ से देख रहे हो तो नवंबर से अप्रैल में कटाई हो रही है ना। नवंबर में बुआई हुई और अप्रैल मई मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में लगभग कटाई हो जाती है। अब सोचो नवंबर में मतलब खूब कड़ाके की ठंडक, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी लास्ट, मार्च में भी लगभग कड़ाके की ठंडक रहती है। मतलब ये जो क्रॉप है इनको क्या चाहिए, ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए और लो टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट चाहिए, जिसमें टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो कब रहता है, विंटर में ना। तो इसीलिए रबी को हम क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप। क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप। बात क्लियर हुई? हाँ, बात करें खरीफ की तो खरीफ जो है इसको हम बोलते हैं मॉनसून क्रॉप। क्या बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप। देख लो आप लोग, मॉनसून समझ गए, बारिश वारिश कब होती है, जून से स्टार्ट होती है अक्टूबर तक, बिल्कुल एकदम मजेदार बढ़िया वाली बारिश होती है ना, तो मॉनसून क्रॉप। जैद क्रॉप की बात करें, अब मार्च जैसे ही होली खत्म होती है धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है ना। हाँ, इधर तो ये खत्म हो रहा है, इसका फ्लावरिंग हो चुका होगा, मतलब इसके जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ गया, मतलब हो चुका होगा, बस इसकी हार्वेस्टिंग बची होगी रबी की ना। मई तक मतलब मार्च तक इसके जितने भी जो सीड रहते हैं वो लग जाते हैं। जैसे वीट है तो उसकी सीड लग चुके होंगे ना। हाँ, बस हर थोड़ा पक जाए उसके लिए थोड़ा और समय स्पेंड कर ले ताकि वो जो सीड है उसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाए, इसीलिए थोड़े समय के लिए छूट जाता है, 1 आध महीने के लिए, पर अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। जैद क्रॉप की बात करें तो मार्च खत्म होते होते क्या स्टार्ट हो जाते हैं, गर्मी। अप्रैल में गर्मी, मई में गर्मी, या फिर बोले मई में गर्मी, और जून में और गर्मी ना। मतलब पूरा किस में चल गया, समर सीजन में। तो कौन सा क्रॉप कहलाएगा, वेरी गुड, क्या कहलाएगा, समर क्रॉप। ठीक है, तो ये विंटर क्रॉप, ये मॉनसून क्रॉप, समर क्रॉप। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
आपकी किताब में लिखा होता है रबी क्रॉप, those crop which are grown during the winter season known as rabi crop. इसको क्या बोलेंगे? Such type of crop which are grown during the monsoon known as kharif crop, zaid crop. Those crop which are grown during the summer season known as zaid crop. ठीक है, इसको राइट कर लें, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, जल्दी से राइट कर लें। अब इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक। देख, अगर एग्जाम्पल की बात करें रबी क्रॉप ना, तो रबी क्रॉप के बारे में सोचे, ये लगाया कब किया था? नवंबर में, और अप्रैल में कटाई हुई थी। अब सोचे क्या हो सकता है ये? हाँ, वेरी गुड। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वीट के साथ, गेहूं के साथ जौ लगाया जाता है, बार्ले, ठीक है। मटर भी इसी सीजन में आती है, पी, टिक, और इसके साथ साथ जो आपका बोले सरसों है, मस्टर्ड, ये भी क्या होता है? इसी सीजन में लगाया जाता है। क्लियर हुई बात? खरीफ क्रॉप पे आए। अब खरीफ क्रॉप के बारे में आप बहुत ध्यान से सोचें। इसकी कटाई होती है अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद कौन सा बोले क्रॉप आपको देखने को मार्केट में मिलता है? सोचिएगा, तब तक मैं बता देता हूँ कुछ। देखो, ये क्या है? मॉनसून। मॉनसून में ज्यादातर क्या उगाया जाता है? अरे बारिश हो रही होती, कौन सा प्लांट लगाते हैं? हाँ, पैडी लगाते हैं ना, धान लगाते हैं। पैडी मतलब इससे रिलेटेड है, इससे राइस बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसी समय आपको मेज देखने को मिलेगा, भुट्टा, ठीक है। हाँ, बाजरा भी इसी में आ जाता है ना। हाँ, मेज के बाद और मॉनसून में ही कॉटन की खेती होती है, और इसी समय मतलब अक्टूबर के बाद ही, जिसके घर में मतलब तो खेती होती होगी, वो जानता होगा, फार्मिंग होती होगी, तो लगभग अक्टूबर के बाद ही गन्ने की छिलाई होने लगती है ना। अभी अप्रैल में गन्ने की बुआई होगी, उसको शो किया जाएगा, और हार्वेस्टिंग उसकी अक्टूबर के पास होती है, ठीक। फिर उसके बाद अक्टूबर में जस्ट मिल चले जाते हैं, हाँ, शुगर मिल, ठीक। इसके साथ साथ अक्टूबर के बाद कौन सा ऐसा क्रॉप है जो अक्टूबर के बाद आपको मिलता है? मतलब वही अक्टूबर के आसपास मिलता है, और उसको फोड़ के खाते हो, उसमें सीड भी होता है रेड कलर का, उसकी कोटिंग होती है ना सीड की। हाँ, वेरी गुड। क्या है वो? ग्राउंड नट। समझदार हो तुम लोग, बिल्कुल ना। अब ग्राउंड नट है, तो इसके साथ सोयाबीन भी लिख लो, सोयाबीन भी ग्रो किया जाता है, ठीक। तो ये सारे क्रॉप है किसके? खरीफ के। राइस या बोले पैडी, धान, मेज, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये सब सारे क्या? खरीफ क्रॉप। अब आते हैं जैद क्रॉप। जैद क्रॉप कब लगाया गया? मार्च में। कब हार्वेस्ट किया जाएगा? जून में ना, मतलब मार्च में लगाया गया, तो इसके फ्रूट्स निकलने लगे होंगे मई, अप्रैल लास्ट और मई में ही इसके फ्रूट्स निकलने लगते। अब सोचो, इस समय सीजन चल रहा है, आपको कौन सी चीज मिल रही है खाने को? कुछ लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। हालांकि ऐसे समझदारी का कोई मतलब नहीं है जब आ ही नहीं रहा तो आंसर। हाँ, कुछ लग रहा है आप बता रहे हो। इस समय क्या आ रहा है? इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, 90 से 92% उसके अंदर वाटर होता है, रेड कलर का होता है, उसमें सीड ज़्यादा होते हैं, उसको काट के खाते हैं, और जब खाते हैं तो साथ में नीचे वाटर भी गिरता है उससे। हाँ, वेरी गुड। वाटरमेलन। क्या है वो? वाटरमेलन। अब वाटरमेलन आजकल दिख ही रहा है ना। हाँ, वाटरमेलन के साथ साथ इसका भाई लिख दो, खरबूजा, मस्क मेलन, ठीक। ये दो हो गए। इसके साथ साथ आपको कुछ और दिख रहा है? हाँ, वाटर जैसा ही। हाँ, वो फ्रूट्स में हम सैलेड में यूज करते हैं, और जनरली उसमें सॉल्ट लगा के खाते भी है। ग्रीन कलर का होता है, समझते नहीं हो बिल्कुल। कुकुम्बर, खीरा खाते ना, खीरा, ककड़ी, ये सब निकल रहा है ना आजकल। हाँ, ये हो गया। तो मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, साथ साथ जितने भी कोकरबिटेसी फैमिली के हैं वो सारे, जैसे पंपकिन हो गया, आजकल दिख रहा होगा, अच्छा भी लगता खाने में
ना, कद्दू चावल मेरा फेवरेट है इसलिए बोला ना। पम्पकिन हो गया, उसके साथ साथ बीटर गार्ड हो गया ना, गार्ड्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो भी लिख लें। पम्पकिन ना, बीटर गार्ड, गार्ड्स मतलब लौकी, बीटर गार्ड मतलब करेला, करेला, समझ आया? हाँ, तो ये बात है इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, इसके अलावा रबी, खरीफ, जैद, इसका हमने सीजन, सोइंग सीजन देखा, हार्वेस्टिंग सीजन देखा, क्या और बोलते हैं ना सीजन के हिसाब से वो देखा, एग्जाम्पल देखा। लेकिन हर क्लास की तरह इस बार मैंने आपको ट्रिक नहीं बताया कैसे याद रखें ना। कुछ लोग जानते हैं पहले से, उनको बता रखा है, जो नहीं जानते हैं वो देख लें ट्रिक क्या है इसको याद करने की, मतलब रबी, खरीफ, जैद की। तो ऐसे याद करेंगे, नर ने जोक, नर के जोक में मजा, ठीक है, नर के जोक में मजा। हालांकि आपको मैंने बताया था नर ने जोक मारा, क्योंकि वहां पे जैद क्रॉप पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैं तो अब थोड़ा सा चेंज करें, नर के जोक में मजा, ठीक है, नर के जोक में मजा आता है, ठीक है, पक्का। हाँ, अब देखो इसमें दो वर्ड आ रहे होंगे, क्योंकि सोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों होगा। तो जो पहला बोले तो जो आपका नेम है किसका, मंथ का, जो पहले मंथ मतलब जो मंथ का नेम पहले आएगा वो उस क्रॉप का सोइंग पीरियड होगा, और जो बाद में आएगा वो हार्वेस्टिंग पीरियड। चल लिखते हैं, एन फॉर कौन सा मंथ, नवंबर, ए फॉर अप्रैल, आर फॉर रबी। अब सोचो रबी क्रॉप का सोइंग पीरियड नवंबर, हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रैल, जे फॉर जून, ओ फॉर अक्टूबर, और के फॉर खरीफ। फिर से सोचो, खरीफ का सोइंग पीरियड जून, हार्वेस्टिंग पीरियड अक्टूबर, मैंने बताया जो पहले मंथ का नेम मिलेगा वो सोइंग बताएगा, सोइंग पीरियड को डिनोट करेगा, एंड द नेक्स्ट वन इज विल बी शो हार्वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। अब इसमें आए मध्य में आए, तो मा फॉर मार्च, ज फॉर जून, ज फॉर जून, और जो अगला जा बचा मध्य ना, मध्य, तो म जो जा, तो ये हो जाएगा जा फॉर जैद, ठीक। वैसे याद रखेंगे, नवंबर अप्रैल रबी क्रॉप, जून अक्टूबर खरीफ क्रॉप, मार्च जून जैद क्रॉप। बाकी मॉनसून सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन आपको याद रखना, मैंने बता दिया। ये आपको अगर मॉनसून पता, नवंबर से अप्रैल विंटर ज़्यादा रहता है तो विंटर, जून से अक्टूबर बारिश ज़्यादा होती तो मॉनसून, और इसमें गर्मी ज़्यादा होती तो समर क्रॉप, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल याद रखने का सबसे सिंपल सा फंडा है कि आपके आस पड़ोस में अगर फार्मिंग होती है तो उसको थिंक करो, उसको मेमोराइज करो, और उस बेसिस पे आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत इजीली याद हो जाए। देखो जब गेहूँ लगता है तो उसके साथ जौ लगता है, ठीक है, और मटर भी ठंडक में ही मिलते हैं ना खाने को, गर्मियों में तो कोई खाते नहीं। मस्टर्ड भी जस्ट गेहूं से पहले कटाई होती है। उसके बाद खरीफ क्रॉप की बात करें, खरीफ क्रॉप क्या है, धान, पता है आपको, भुट्टा भी उधर ही मिलता है ना, बारिश नहीं आती। कॉटन, कपास, ऐसे याद रखो, कपास कहाँ गया है तो मुंबई में, मुंबई में ज़्यादातर आपको मतलब बारिश ही मौसम दिखेगा, मानसून वाला, ऐसे याद रख सकते हो। शुगर केन, फिर से राइस मिल कब चलती है, सॉरी जो आपका शुगर मिल है कब चलती है, जब वो रामलीला आ रहा होता है या फिर बोले दुर्गा पूजा आ रहा होता है, उसी के आसपास ना, और दिवाली भी आने वाली होती है, उसी के आसपास चलती है, उसी के आसपास खरीफ क्रॉप ही तो आता है ना। शुगर केन हार्वेस्ट करोगे तभी तो ले आओगे मिल, हार्वेस्टिंग पीरियड अक्टूबर के पास होगा तो खरीफ क्रॉप नहीं कहलाएगा। ग्राउंडनट, मूंगफली कब फोड़ते हैं,
अभी फोड़ रहे हो? नहीं, अक्टूबर के आस पड़ोस में फोड़ोगे ना। हाँ, सितंबर अक्टूबर और दिवाली पे तो अच्छा खासा हो जाता है। उससे पहले होता है क्या, करवा चौथ ना। हाँ, बहुत सारे लड़के रहते हैं ना करवा चौथ। हाँ करो मम्मी पापा के लिए। अगला क्या है, सोयाबीन, इसको भी याद है, ब्राउन। और ये तो आप लोग खा ही रहे हो आजकल क्योंकि समर है। और ये भी मिल रहा है कुकम्बर, पम्पकिन मेरा फेवरेट है और आज ही मिलता है, इसी समय अच्छा भी लगता है ना इस सीजन में। बिटर गार्ड और गार्ड, लौकी भी और करेला, आजकल करेला भी घर में बन रहा होगा। हाँ, तो इसी समय ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, हालांकि मिलती हैं होल ईयर, लेकिन इस समय ज़्यादा सीजनल है ना, इस समय ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर ये वाटरमेलन हम आपको ठंडक में दिखाने को, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जितनी भी चीज़ें नेचर में है बहुत ही क्या है, डेफिनेट और बहुत ही फिक्स तरीके से बनाई गई है कि ये चीज़ इधर ही ग्रो करेगा और इधर ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने कुछ करके चेंजेस करके उसके जीन्स में चेंजेस करके आपने किसी और सीजन में ग्रो करा लिया, ग्रो तो हो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। आप स्टोर करके भी अगले सीजन में खाए, सीजन तक चल गया अगले सीजन तक, लेकिन उसको खाओगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हर चीज़ सीजनल ही अच्छी लगती है ना। ऐसे ही आपको करना है, जो चीज़ आज आपको करना है वो कल पे मत टालें, क्योंकि वो चीज़ कल पे तो टल जाएगी, लेकिन जब कल उसको करने बैठोगे तो शायद कर भी नहीं पाओगे और अधूरा रह जाएगा। अधूरा रह जाएगा तो आपके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। और कभी भी टीचर नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट के सपने अधूरे रहें ना। हाँ, तो मेहनत करें अच्छे से, ठीक। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर। तो यहीं तक आज पढ़ेंगे, इसके आगे कल से कंटिन्यू करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर, ओके। सो स्टे होम and be safe and be happy. God bless you. Thank you.